کہیں بہت دور ایک پرانے مگر خوشحال گاؤں میں ایک ظالم شخص رہتا تھا جس کا نام شاہین خان تھا۔ شاہین خان گاؤں کے چند امیر زمینداروں میں شمار ہوتا تھا۔ اس کے پاس کئی کھیت، مویشی اور ایک بڑا حویلی نما گھر تھا، لیکن اس کی طبیعت میں محبت نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ اس کے اندر ہمیشہ ایک خواہش رہتی تھی۔ وہ ہمیشہ چاہتا تھا کہ اس کے بیٹے ہوں جو اس کے نام کو روشن کریں، اس کے کام میں ہاتھ بٹائیں اور اس کے بعد اس کی زمینوں کے وارث بنے۔ مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس کی بیوی نے 3 بیٹیوں کو جنم دیا اور جب تیسری بیٹی پیدا ہوئی تب اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ وہ اپنی بیوی سے نفرت کرنے لگا اور اس کا ہر طرح سے دل دکھانے لگا۔ تم نے مجھے وارث دینے کے بجائے 3 بوجھ دے دیے، میری زمینیں، میرا نام، میری دولت، اب ان لڑکیوں کے نصیب میں چلی جائے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جملے وہ اپنی بیوی پر برسایا کرتا تھا، مگر اس مظلوم عورت کے پاس کوئی جواب نہ تھا سوائے آنسو بہانے کے۔ وہ بار بار خدا سے دعا کرتی کہ اس کے شوہر کے دل میں اپنی بیٹیوں کے لیے نرمی آ جائے، مگر شاید شاہین خان کے دل پر ظلم کی ایک مضبوط دیوار کھڑی ہو چکی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن وہ وقت بھی آ گیا جب شاہین خان کی بیوی بیماری کے ہاتھوں جان کی بازی ہار گئی۔ اس دن گاؤں کے کئی لوگوں نے شاہین خان سے کہا، بیٹیوں کا سایہ صرف ماں ہوتی ہے، ان کا خیال رکھنا ورنہ وہ دنیا میں بالکل تنہا ہو جائیں گی۔ مگر شاہین خان نے بے رخی سے سر جھٹک دیا اور کہا، یہ میرے لیے پہلے بھی بوجھ تھی اور اب بھی بوجھ ہیں، ان کی قسمت خود ہی انہیں جہاں لے جائیں گی، مجھے ان کی فکر نہیں۔ یہ سن کر گاؤں والے افسوس سے سر ہلانے لگے، مگر کوئی کچھ نہ کر سکا۔ یوں 3 معصوم بیٹیاں اپنی ماں کے بغیر ایک سنگ دل باپ کے سائے میں رہنے لگیں۔ سب سے بڑی بیٹی زری تھی، جو ذہین، سمجھدار اور سب سے زیادہ صبر کرنے والی تھی۔ وہ ماں کے انتقال کے بعد چھوٹی بہنوں کے لیے ایک ماں جیسی بن گئی تھی۔ وہ ان کا خیال رکھتی، ان کے کپڑے دھوتی، کھانا پکاتی اور حتیٰ کہ ان کے آنسو بھی صاف کرتی۔ درمیانی بہن فری نہایت نرم دل اور حساس تھی۔ وہ بہت جلدی رو پڑتی تھی اور جب بھی باپ کی سختی سہتی تو زری کے گلے لگ کر آنسو بہا دیتی۔ سب سے چھوٹی بہن مریم تھی۔ اسے پوری طرح احساس نہیں تھا کہ اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی ہے۔ جب وہ ماں کو یاد کرتی تو معصومیت سے پوچھتی، آپی، امی کب آئیں گی؟ یہ سن کر زری کے دل پر قیامت ٹوٹ پڑتی، مگر وہ اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو ضبط کر کے بہن کو پیار سے بہلا دیتی۔ ماں کے جانے کے بعد شاہین خان کا رویہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ مزید خراب ہو گیا۔ وہ ان سے بالکل محبت نہ کرتا بلکہ انہیں ہر وقت بوجھ سمجھتا۔ گاؤں میں جب کوئی اپنی بیٹیوں کے ساتھ محبت بھری بات کرتا تو وہ طنزیہ ہنستا اور کہتا، بیٹیاں تو زمین پر اللہ کا عذاب ہیں، اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں ان کو پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیتا۔ یہ سن کر لوگ حیران رہ جاتے، مگر کوئی اس کے سخت دل کو نرم نہ کر سکا۔ زری بچپن سے ہی بہت ذہین تھی اور اپنی ماں کے جیتے جی چھپ چھپ کر کتابیں پڑھا کرتی تھی، مگر ماں کے انتقال کے بعد جب اس نے باپ سے مدرسے جانے کی اجازت مانگی تو وہ غصے میں آ کر بولا، لڑکیوں کا ان سے کیا کام، تمہیں تو صرف گھر کا کام کاج سیکھنا چاہیے، میرے گھر میں کسی لڑکی کو کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے زری کی کتابیں چھین کر انہیں جلا دیا۔ زری کا دل ٹوٹ گیا، مگر اس نے اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ یاد رکھا۔ اسی لیے وہ رات کو جب سب سو جاتے تو اندھیرے میں بیٹھ کر زمین پر انگلی سے لکھنے کی کوشش کرتی، پرانی چٹائیوں پر انگلیاں پھیر کر حروف بناتی اور دیے کی مدھم روشنی میں خواب دیکھتی، وہ خواب جو اس کے ظالم باپ کی قید میں دم توڑ رہے تھے۔ دن گزرتے رہے مگر شاہین خان کی نفرت کم نہ ہوئی۔ جب وہ کھیتوں سے واپس آتا تو کبھی زری سے پانی لانے کا حکم دیتا، کبھی فری کو کھانے پر برا بھلا کہتا اور کبھی مریم کو محض شور کرنے پر زور سے مار دیتا۔ بیٹیاں دن رات یہ سب سہتی رہی، مگر ان کے دل میں ایک چھوٹی سی امید زندہ تھی کہ شاید کبھی ان کا باپ بدل جائے، شاید وہ بھی کبھی کسی اور باپ کی طرح محبت کرنے لگے، مگر حقیقت تو کچھ اور ہی تھی۔ ایک دن شاہین خان نے ایک خوفناک فیصلہ کیا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا جب اچانک اس نے کہا، میں ان تینوں کو جلد از جلد بیاہ کر گھر سے نکال دوں گا، میرا سر پہلے ہی ان کے بوجھ سے جھکا ہوا ہے۔ یہ سن کر ایک آدمی بولا، مگر تمہاری بڑی بیٹی زری بہت ذہین اور خوبصورت ہے، اگر تم چاہو تو اسے کسی امیر آدمی کے ساتھ بیاہ دو تاکہ تمہیں بھی کچھ فائدہ ہو۔ یہ سن کر شاہین خان کے دماغ میں ایک لالچی خیال آیا۔ اس نے دل میں سوچا، کیوں نہ زری کی شادی کسی برے اور امیر آدمی سے کروا کر پیسے بٹور لوں۔ یہ فیصلہ سن کر گاؤں کے کئی لوگوں کو افسوس ہوا،
मगर किसी में हिम्मत ना थी कि वो इस संगदिल बाप को रोके। जब जरी को इस फैसले का इल्म हुआ तो इसकी आंखों में आंसू आ गए। इसने पहली बार अपनी बहनों की तरफ देखा जो सहमी हुई खड़ी थी। वो समझ गई कि अगर वो आज हार गई तो इसकी बहनों के लिए भी कोई उम्मीद बाकी नहीं रहेगी। जरी ने उस रात आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ की, ए अल्लाह, हमें इस कैद से निकाल दे, हमें हिम्मत दे कि हम अपनी तकदीर खुद बना सकें। मगर जरी नहीं जानती थी कि किस्मत के खेल अभी बाकी थे और आगे इसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो सब कुछ बदल कर रख देगा। रात का अंधेरा हर तरफ छा चुका था, पूरा गांव नींद की आगोश में जा चुका था, मगर जरी की आंखों में नींद का नामो निशान तक न था। वो अपनी चटाई पर बैठी हुई बार बार अपनी माँ की तस्वीर देख रही थी, वही एक पुरानी तस्वीर जो माँ के जाने के बाद इसकी आखिरी निशानी रह गई थी। इसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। बाप का वो जालिमाना फैसला इसके जहन पर थोड़े की तरह बरस रहा था। जरी ने बेबसी में अपने हाथों को मुट्ठियों से बेंच लिया। वो जानती थी कि अगर वो शादी के लिए हाँ कर दे तो इसकी छोटी बहनों का मुस्तकबिल भी अंधेरे में डूब जाएगा। उसी वक्त परी और मरियम भी दबे पांव इसके पास आ गई। दोनों बहनों के चेहरों पर खौफ के साए थे और वो कहने लगी, अब भी हमें बहुत डर लग रहा है। बाबा हम सब के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? जरी ने इन दोनों को गले से लगा लिया और धीरे से बोली, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अल्लाह हमारे साथ है। मगर सवाल ये था कि वो अब कर भी क्या सकती थी। एक तरफ इसका संगदिल बाप था, दूसरी तरफ इसकी बेबस तकदीर। वो अपनी माँ की तरह खामोशी से जुल्म सहकर इस कैद में जिंदगी गुजार सकती थी या फिर कोई रास्ता तलाश करके खुद को और अपनी बहनों को इस अजियत से निजात दिला सकती थी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें आसमान पर बिखरने लगी तो जरी ने देखा कि इसके बाप की हवेली में गैर मामूली गहमा गहमी थी। कुछ अजनबी चेहरे हवेली के शहर में बैठे थे और इनके साथ एक बुरा जमींदार भी मौजूद था, वही जिसके साथ इसकी शादी तय कर दी गई थी। जरी का दिल डूबने लगा। इसने दीवार के पीछे से झांक कर सुना कि ये रिश्ता बहुत अच्छा है। एक शख्स कह रहा था हवेली में एक नौकरानी की जरूरत भी थी और चौथी बीवी का दर्जा भी मिल जाएगा। शाहीन खान ने मुस्कुराकर कहा, हाँ हाँ, मुझे कोई एतराज नहीं, बस निकाह आज ही हो जाना चाहिए। ये सुनते ही जरी की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। आज ही निकाह? क्या ये सब हकीकत में हो रहा था? वो दौड़ती हुई अपनी बहनों के पास पहुंची और हाँफती हुई आवाज में बोली, हमें यहाँ से भागना होगा अभी और इसी वक्त। फरी और मरियम हैरान रह गई। आप भी भाग कर कहाँ जाएंगे? कहीं, जरी कहने लगी, कहीं भी, मगर इस जालिम बाप के घर में नहीं रह सकते। अगर आज मैं हार गई तो कल तुम दोनों की भी बारी आएगी। ये कहकर इसने जल्दी से एक चादर उठाई, चंद रोटियां पुराने कपड़े में बांध दी और खामोशी से घर के पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। बाहर अंधेरा भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था और अगर वो जल्दी करती तो सूरज निकलने से पहले ही गांव से निकल सकती थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, हर कदम एक नए खतरे की निशानदेही कर रहा था। जब तीनों बहनें दबे पांव दरवाजे से बाहर निकली तो इनके कदम बेख्तियार एक सुनसान रास्ते की तरफ बढ़ने लगे। वो जल्दी जल्दी चल रही थी मगर अचानक पीछे से किसी ने ऊंची आवाज में चिल्लाकर कहा, रुको, तुम कहाँ जा रही हो? जरी का सांस रुक गया। वो जानती थी कि यह आवाज किसकी थी। ये इनके बाप का सबसे वफादार नौकर कमाल खान था जो हमेशा शाहीन खान के अहकामात पर अमल करता था। जरी ने मुड़ कर देखा, कमाल खान दो और आदमियों के साथ खड़ा था और इनके हाथों में डंडे थे। तुम तीनों यहाँ से भागने की कोशिश कर रही हो? कमाल खान गुस्से से बोला, अगर बाबा को पता चला तो तुम्हारी खैर नहीं। जरी ने जल्दी से अपनी बहनों का हाथ पकड़ा और बोली, दौड़ो। तीनों बहनें जान बचाने के लिए अंधेरे में भागने लगी। कमाल खान और इसके साथी इनके पीछे लपके। जमीन पर जगह जगह पत्थर और कांटे थे मगर जरी ने रुकने का नाम नहीं लिया। अचानक एक बड़ा नाला सामने आ गया। अगर वो यहाँ रुक जाती तो पकड़ी जाती और अगर आगे बढ़ती तो पानी में गिरने का खतरा था। जरी ने अपने अंदर हिम्मत जमा की और कहा, हमें ये अबूर करना होगा। मगर जैसे वो नाले की तरफ दौड़ी, पीछे से कमाल खान ने जरी का बाजू पकड़ लिया। कहाँ जा रही हो? इसने गुस्से से कहा, तुम बचकर नहीं जा सकती। जरी ने पूरी ताकत से हाथ झटका और इस लम्हे एक बड़ा पत्थर कमाल खान के पाँव के नीचे आया। वो तवाज़ुन बरकरार न रख सका और जमीन पर गिर गया। यही मौका था। जरी ने फरी और मरियम का हाथ पकड़ा और जल्दी से नाले के इस पार कूद गई। पानी गहरा नहीं था मगर इनके कपड़े भीग गए और हर कदम बोझल हो गया। कमाल खान की चीखों पुकार पीछे रह गई मगर खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। अब सवाल ये था कि तीनों बहनें कहाँ जाएं? इनके पास ना पैसे थे ना कोई जानने वाला।
हम कहाँ जाएं आपी? मरियम ने कांपती हुई आवाज में पूछा। जरी ने सांस बाहर करते हुए कहा, हमें किसी महफूज जगह जाना होगा, शायद शहर की तरफ, जहाँ हमारा बाप हमें ना ढूंढ सके। ये कहते हुए इसने पीछे मुड़कर देखा। गांव की रोशनी अब दूर नजर आ रही थी। वो जानती थी कि ये सफर आसान नहीं होगा, मगर वो ये भी जानती थी कि वो पीछे नहीं जा सकती, क्योंकि पीछे सिर्फ कैद थी, जुल्म था और एक ऐसी जिंदगी जिसमें इनकी कोई मर्जी ना थी। मगर आगे क्या था, ये उन्हें भी नहीं पता था। जरी, फरी और मरियम की सांसें तेज हो रही थी। वो नाला अबूर कर चुकी थी, मगर रास्ता अभी खत्म नहीं हुआ था। हर कदम के साथ जमीन की सख्ती, जंगली झाड़ियों की खराशें और कपड़ों की नमी इनके हौसले आजमा रही थी। मगर जरी को मालूम था कि अब वापसी का कोई रास्ता बचा नहीं। अंधेरा गहरा होता जा रहा था और हर तरफ सन्नाटा था। तीनों बहनों की भूख शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी, मगर खाने को कुछ भी नहीं था। जरी ने जो थोड़ी रोटियां साथ ली थी वो भी पानी में भीग चुकी थी। आप ही, मुझे भूख लगी है, मरियम ने मासूम आवाज में कहा और इसकी आंखों में आंसू चमकने लगे। जरी ने इसे अपने सीने से लगा लिया और नरमी से बोली, सब्र करो मरियम, हम किसी न किसी तरह खाने का बंदोबस्त कर लेंगे। उन्होंने एक पुराने दरख्त के नीचे पनाह ली। फरी ने थके हुए लहजे में पूछा, अगर बाबा ने हमें ढूंढ लिया तो? जरी ने आसमान की तरफ देखा, जहां चांद की मध्यम रोशनी जमीन पर पड़ रही थी। वो जानती थी कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था, मगर इसे ये भी मालूम था कि अगर वो डर गई तो इनकी आजादी हमेशा के लिए छीन जाएगी। हमें जल्द अज जल्द किसी और गांव में पहुंचना होगा, जहां हमारा बाप हमें ना ढूंढ सके, जरी ने पुरअज़म लहजे में कहा। मगर गांव के बाहर की दुनिया कैसी होगी? वो मेहरबान होगी या जालिम? ये एक सवाल था जिसका जवाब वक्त ही दे सकता था। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरणें जमीन पर पड़ी, जरी ने अपनी बहनों को जगाया और सफर दोबारा शुरू कर दिया। वो रास्ते में किसी ऐसी जगह की तलाश में थी जहां वो मदद हासिल कर सके। चलते चलते उन्हें एक काफिला नजर आया जो माल बर्दारी के लिए कहीं जा रहा था। काफिले में कुछ मर्द और चंद ख्वातीन भी मौजूद थी जो सामान के साथ साथ पैदल चल रही थी। जरी ने सोचा कि अगर वो इस काफिले के साथ शामिल हो जाएं, तो शायद वो आसानी से किसी बड़े शहर में पहुंच सकेंगी। हम इनसे मदद मांगे, फरी ने धीरे से कहा। जरी ने सर हिलाया और दिलेरी के साथ आगे बढ़ी। जैसे ही वो काफिले के करीब पहुंची, एक लंबे कद का आदमी जिसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, इन्हें देखकर रुक गया। तुम कौन हो और इस सुनसान रास्ते पर क्या कर रही हो? इसने सख्त लहजे में पूछा। जरी ने हिम्मत जमा करके जवाब दिया, हम यतीम हैं और अपने गांव से दूर जा रही हैं। हमें किसी महफूज जगह तक पहुंचने में मदद चाहिए। आदमी ने इन तीनों को सर से पांव तक गौर से देखा, फिर दूसरे आदमियों से कुछ सरगोशी की। फिर इसने मुस्कुराकर कहा, हम तुम्हें अपने साथ ले जा सकते हैं, मगर तुम्हें हमारे काफिले की खिदमत करनी होगी। जरी को यह बात कुछ अजीब लगी। वो जानती थी कि इस दुनिया में कोई भी किसी का मुफ्त में साथ नहीं देता, मगर इसके पास और कोई रास्ता नहीं था। ठीक है, इसने कहा, हम काम कर लेंगे, बस हमें किसी महफूज जगह पहुंचा दो। काफिला आगे बढ़ने लगा। जरी, फरी और मरियम ने काफिले के साथ साथ चलना शुरू किया। रास्ते में जरी ने गौर किया कि काफिले के कुछ मर्दाना अजीब लग रहे थे। इनकी नजरें बार बार तीनों बहनों पर पड़ रही थी और इनकी सरगोशियां किसी खतरे की निशानदेही कर रही थी। रात के वक्त जब सब आराम कर रहे थे, जरी ने चुपके से अपनी बहनों को जगाया और कहा, मुझे इन लोगों पर भरोसा नहीं, हमें यहाँ से निकलना होगा। मगर जैसे ही वो जाने के लिए तैयार हुई, एक बारी आवाज सुनाई दी, कहाँ जा रही हो? जरी, फरी और मरियम के दिल दहल गए। वही आदमी जो काफिले का सरदार लग रहा था, इनके सामने खड़ा था और इसके हाथ में एक खंजर चमक रहा था। तुम हमें धोखा देकर भागना चाहती हो? वो गुर्राया। जरी ने जल्दी से अपनी बहनों के पीछे खड़ी होकर कहा, हमें जाने दो, हमने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। आदमी ने कहकहा लगाया और कहा, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यूं जाने दूंगा? तुम दोनों को बहुत कीमती सौदा समझकर साथ लाया हूँ। ये सुनकर जरी के पैरों तले जमीन निकल गई। इनके साथ धोखा हो चुका था। वो लोग मददगार नहीं बल्कि इंसानों के सौदागर थे, जो गरीब और बेसहारा लड़कियों को पकड़कर बेच दिया करते थे। जरी ने हिम्मत नहीं हारी। जैसे ही आदमी ने आगे बढ़ने की कोशिश की, इसने पास से पड़ा हुआ एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत से इसके सर पर दे मारा। आदमी धड़ाम से जमीन पर गिर गया और इससे पहले बाकी काफिले वाले कुछ समझ पाते, जरी अपनी बहनों के साथ अंधेरे में भाग निकली। यह फरार पहले से भी ज्यादा खतरनाक था। इनके पीछे खतरनाक शिकारी थे और आगे नामालूम रास्ता। तीनों बहनें दौड़ती दौड़ती एक नहर के किनारे जा पहुंची, जहां दूर एक छोटा सा झोंपड़ा नजर आ रहा था।
वहाँ से धुआं उठ रहा था, जिसका मतलब था कि वहाँ कोई रहता था। जरी ने अपनी बहनों का हाथ पकड़ा और जल्दी से इस झोंपड़े की तरफ बढ़ी। झोंपड़े में जाते ही एक आवाज आई, कौन हो तुम? एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला और हैरत से इन्हें देखा। जरी ने थकी हुई आवाज में कहा, हम बेसहारा हैं, बराह करम हमारी मदद करें। बूढ़ी औरत ने गौर से उन्हें देखा, फिर धीरे से बोली, अंदर आ जाओ बच्चियों, लगता है कि तुम पर कोई बड़ी मुसीबत आई है। जरी, फरी और मरियम ने एक दूसरे की तरफ देखा। शायद किस्मत ने इन पर रहम खा लिया था, या शायद ये एक नई आजमाइश का आगाज था। बूढ़ी औरत की मध्यम लेकिन शफकत भरी आवाज सुनकर जरी की आंखों में आंसू आ गए। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि किसी ने पहली बार इनके लिए दरवाजा खोला था। वो अपनी बहनों के साथ लरसती हुई झोंपड़े के अंदर दाखिल हुई। अंदर का मंजर बहुत सादा था। बूढ़ी औरत ने इनके भीगे हुए कपड़ों को देखा और नरमी से पूछा, तुम कौन हो बच्चियों, कहाँ से आ रही हो? जरी ने गहरी सांस ली और पूरा वाकया सच्चाई के साथ बयान कर दिया। जालिम बाप, जबरदस्ती की शादी, फरार और काफिले वालों का धोखा। बूढ़ी औरत ये सब सुनती रही और इसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई। वो धीरे से बोली, ये दुनिया जालिमों से बड़ी बड़ी है, मगर बच्चियों तुम्हारी हिम्मत कमजोर नहीं होनी चाहिए। तुमने जो फैसला किया वो सही था, मगर ये रास्ता अभी खत्म नहीं हुआ। क्या आप हमारी मदद करेंगी? फरी ने घबराए हुए लहजे में पूछा। बूढ़ी औरत ने इस बात में सर हिलाया और कहा, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मगर इसके लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए। वक्त गुजरने लगा और तीनों बहनें कुछ दिनों के लिए इस झोंपड़े में पनाह लेकर महफूज हो गई। बूढ़ी औरत, जिसका नाम आमिना बीबी था, इनका खास ख्याल रखती। वो खाने के लिए कुछ न कुछ मुहैया कर देती और दिन के वक्त उन्हें छुप कर रहने का कहती, ताकि कोई अजनबी इनके बारे में ना जान सके। मगर वो ये नहीं जानती थी कि खतरा अभी टला नहीं था। शाहीन खान को जल्दी मालूम हो चुका था कि इसकी बेटियां काफिले के साथ फरार हुई थी। जब इसे पता चला कि वो लोग भी इन्हें पकड़ने में नाकाम रहे, तो इसका गुस्सा सातवें आसमान को छूने लगा। मुझे वो लड़कियां जिंदा या मुर्दा वापस चाहिए, इसने अपने आदमियों को हुक्म दिया। एक रात जब सब सो रहे थे, आमना बीबी के झोंपड़े के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। जरी की नींद फौरन खुल गई। ये कौन हो सकता है, इसने घबरा कर सोचा। वो चुपके से दरवाजे के करीब आई और बाहर झांका। इसे दो आदमी दिखाई दिए जो आपस में सरगोशी कर रहे थे। एक ने कहा कि हमें खबर मिली है कि वो लड़कियां यहाँ पर छुपी हुई हैं। जरी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो जानती थी कि अगर वो यहाँ रही तो सुबह होने से पहले इनका राज फाश हो जाएगा। इसने जल्दी से अपनी बहनों को जगाया और आमना बीबी को सारी बात बताई। आमना बीबी ने परेशान होकर कहा, अब वक्त जाया करने का नहीं बच्चियों, तुम्हें फौरन यहाँ से निकलना होगा, मगर कहाँ जाएं? मरियम ने बेबसी से कहा। आमना बीबी ने जल्दी से एक पुराना रुमाल खोला जिसमें कुछ सिक्के और थोड़ी सी खुश्क रोटी थी। ये लो और सीधा मशरक की तरफ चले जाओ। वहाँ एक दरगाह है जहाँ मेहमान लोग रहते हैं, वो तुम्हें पनाह दे सकते हैं, मगर रास्ता लंबा और खतरनाक है, इसलिए ध्यान रखना। जरी ने बूढ़ी औरत के हाथ चूम लिए। अल्लाह आपको इस नेकी का अजर दे अम्मा। रात के अंधेरे में तीनों बहनें दोबारा एक नामालूम मंजिल की तरफ चल पड़ी। इनके पीछे सिर्फ अंधेरे और जुल्म का साया था और आगे उम्मीद की एक मध्यम रोशनी। वो कई दिनों तक सफर करती रही। भूख, प्यास और थकान इनका इम्तिहान ले रही थी, मगर इनके कदम नहीं रुके। वो जानती थी कि अगर अब हार मान ली तो सारी मेहनत जाया हो जाएगी। बिलाखिर कई दिनों की मुसाफत के बाद वो एक बुलंद व बाला दरगाह के दरवाजे पर पहुंच गई। दरवाजे के बाहर कई फकीर और मुसाफिर बैठे थे और अंदर कुरान की तलावत की आवाज आ रही। जरी ने लरसते हाथों से दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद एक बुजुर्ग दरवाजे पर आए और हैरानी से तीनों बहनों को देखा। कौन हो बेटियों? उन्होंने नरमी से पूछा। जरी की आंखों में आंसू आ गए। हम यतीम हैं और हमें पनाह की जरूरत है। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और दरवाजा खोल दिया। आ जाओ बेटियों, जो अल्लाह के दर पर आ गया वो कभी बेसहारा नहीं होता। ये सफर एक आजमाइश था, मगर अब वो एक ऐसी जगह पहुंच चुकी थी जहां इन्हें तहफ्फुज़ का एहसास हो रहा था। दरगाह के बुजुर्गों ने इनका हाल सुना और उन्हें वहीं पनाह दे दी। वक्त के साथ जरी, फरी और मरियम ने वहाँ जिंदगी गुजारने का हुनर सीखा। जरी ने दरगाह के मदरसे में पढ़ाना शुरू कर दिया। फरी ने सिलाई और कढ़ाई सीख ली और मरियम कुरान की तालीम में महारत हासिल करने लगी। वो तीनों अपने बाप के जुल्म से हमेशा के लिए आजाद हो चुकी थी।